برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج پسوال میڈیا چینل نے پاکستان میں موجود مختلف علاقوں کا تعارف شروع کیا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں موجود علاقوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے، ان کی جغرافیائی اہمیت، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، اور ہمیں اپنے ملک میں موجود محل وقوع، اہمیت، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں گے کہ اپنے طور پہ ہم شیئرنگ آف نالج کریں۔ اس سلسلے میں آج ہم نے جس علاقے کا تعارف کروانا ہے آپ سے، بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ اس علاقے کا نام ہے شکر گڑھ۔ شکر گڑھ ضلع نارووال کی تحصیل ہے۔ ویسے تو ضلع نارووال کی 3 تحصیلیں ہیں، ایک تحصیل نارووال، دوسری تحصیل ظفربال، جبکہ سب سے اہم تحصیل شکر گڑھ۔ شکر گڑھ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس کا معنی ہے میٹھا شہر۔ جیسا اس کا نام میٹھا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ویسے ہی میٹھے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس کا محل وقوع کا۔ تو یہ شمال مشرق آف نارووال میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ بھارت اور جموں کشمیر کی سرحدیں لگتی ہیں۔ یہ ایک سرحدی شہر ہے، جبکہ اس کے مغرب میں سیالکوٹ ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو رچنا دواب یعنی راوی اور چناب کو شارٹ کر کے رچنا دوابا کہا جاتا ہے۔ وہ اس کے جنوب مشرق میں شامل ہے۔ شکر گڑھ کی کل آبادی تقریباً 7 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس شہر کا رقبہ 1272 مربع کلومیٹر پر قائم ہے۔ شکر گڑھ شہر سن 1912 میں قائم ہوا۔ قبل ازیں یہ ضلع سیالکوٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ سیالکوٹ کا حصہ تھا، لیکن 1991 میں جب ضلع نارووال بنایا گیا تو یہ نارووال کی تحصیل قرار پایا۔ پارٹیشن سے پہلے اس شہر کا جو محل وقوع ہے، یہ ضلع گرداسپور کی تحصیل ہوا کرتا تھا۔ گرداسپور کے بارے میں یہی گمان تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، کیونکہ طے یہ پایا گیا تھا فارمولہ کے تحت کہ مسلم اکثریتی آبادی میں جو مسلمان زیادہ رہ رہے ہیں، ان علاقوں میں پاکستان میں ضم کر دیا جائے گا، جبکہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی کی بنا پر اس تحصیل گرداسپور کو، ضلع گرداسپور کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا، جس کی سب سے اہم وجہ جموں کے علاقے تک رسائی تھی۔ بھارت نے اپنی ریشہ زبانیوں کی بدولت گرداسپور کے علاقہ کو پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا۔ تحصیل شکر گڑھ بہت ایسی خصوصیات کا حامل ہے جس کی بنا پر پورے پاکستان میں اسے ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم تحصیل شکر گڑھ سے شروع ہوتا ہے۔ اخلاص پور کے پاس ایک عنایت پور کے نزدیک گروٹا گاؤں ہے، وہاں پر سورج کی کرنیں سب سے پہلے پاکستان میں اس علاقے میں پڑتی ہیں۔ قبل ازیں دریائے راوی سب سے پہلے بھارت جموں و کشمیر سے گزرتا ہوا شکر گڑھ میں داخل ہوتا ہے، اور گزرتے گزرتے جسڑ کے مقام پر یہ دریا دوبارہ پھر بھارت میں چلا جاتا ہے،
और अपनी क्रिकेटनेस और कजरवी की बुनियाद पर ये दरिया इसी तरह से कभी भारत और कभी पाकिस्तान में शामिल होता रहता है। ये शहर कंट्रोल ऑफ लाइन के ऊपर आबाद है। इसकी अहम फसलों में गंदम और चावल की फसलें मशहूर हैं, जबकि दीगर अनाज की भी काश्त की जाती है। ये 40 यूनियन काउंसिल जबकि 225 गांव पे मुश्तमिल एक शहर है। इस शहर के सपूत अपनी बहादुरी की बिना पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा सरकारी महकमा नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां पे यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सपूत मौजूद ना हो। बेशक वो फौज का महकमा हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जजेस हजरात हों या कोई भी सिविल सर्विसेज हों, आपको हर जगह, हर शहर, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा शहर बर्रे सगीर से बाहर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, हर जगह के आपको यहाँ लोग नजर आएंगे। यहाँ की सबसे अहम तरीन बात यहाँ का तालीमी निज़ाम है। शकरगढ़ में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85% से ज़्यादा शर्रा खानदगी है, बल्कि इसको सिटी ऑफ स्टडी भी कहा जाता है। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी और आने जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है। इस खित्ते को पूरी दुनिया में मशहूर करने वाला एक ऐसा मुकाम है जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस इलाके का नाम अकीदत से लेते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझ गए, करतारपुर कॉरिडोर। बाबा गुरु नानक का ये आखिरी आरामगाह है। ना सिर्फ सिख मज़हब बल्कि मुसलमान भी इनसे अकीदत रखते हैं और अपने दौर के एक बड़े बुलंद पाया सेंट हुए हैं बाबा गुरु नानक। इस शहर की एक और खासियत है कि यहाँ से आपको जम्मू के पहाड़ नजर आएंगे और बर्फ की कुंभ में रात के वक्त भी नजर आएंगे। यूनानियों ने दरिया रावी, जो कि बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था, लेकिन अब बहरहाल 1960 के बाद से ये दरिया उस लेवल का तो नहीं रहा। यूनानियों ने इसका नाम हेड्रोटिस रखा। ये शहर दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। जंग 65 का एक बड़ा मशहूर वाक़या, जिसमें भारत ने कोशिश की कि वो दरिया रावी के पुल से पाकिस्तान में दाखिल हो, तो पाकिस्तान के एक बड़े बहादुर सपूत नाइक अब्दुल अजीज ने अपने जिस्म के साथ ग्रेनेड्स का हार बांधा और अपनी जान का नजराना पेश किया। ट्रक जो इधर टैंक के नीचे लेट कर अपनी जान का नजराना इस तरह से पेश किया कि टैंक के तबाह होने के बाद जब टैंक वर्टिकल होकर दोबारा से नीचे गिरा और उसके गिरने की वजह से वो पुल भी टूट गया। शायद उस वक्त उस पुल का टूट जाना पाकिस्तानी फौज के हक में था। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बरादरियाँ मौजूद हैं। तो मेजॉरिटी, जो सबसे बड़ी बरादरी इधर है, अक्सरियत गुजर बरादरी है। गुजर बरादरी के साथ साथ राजपूत हैं। राजपूतों के साथ पठान, अंसारी, अराई और दीगर बरादरियां भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ गुजर बरादरी है। अब हम जिक्र करते हैं रूहानी तौर पे इस शहर में कौन कौन सी नामवर शख्सियात मदफन हैं। इनमें सबसे अव्वल नंबर पे नाम बड़े भाई सरकार का आता है, जो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बेशुमार मौजज़ात हैं।
बड़े भाई के दरबार के अलावा यहाँ पे बाबा शहीद सरकार का भी मज़ार है, जहाँ से लोग रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। और अब हम जिक्र करते हैं इस शहर में मशाहीर यानी कि नामवर पर्सनैलिटीज़ का। तो इन तमाम शख्सियात में सफ़े अव्वल में जिनका नाम आता है वो है चौधरी हशमत आफ छजवाल जी। छजवाल गांव के चौधरी हशमत जो अंग्रेज़ दौर में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज थे, उनकी दूर अंदेशी इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने उस दौर में फैसलाबाद के नज़दीक गुजरों के 14 चक आबाद किए और उन 14 चक आबाद करने का सेहरा चौधरी हशमत साहब के सर पे जाता है। लोग आज भी उनका नाम बड़ी अकीदत और एहतराम से लेते हैं। उनके बाद अब्दुल रहीम, चौधरी अब्दुल रहीम मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रहे। अलावा जी एक ऐसी शख्सियत, फिल्मी शख्सियत जो बर्रे सगीर की बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत मानी जाती है, देव आनंद, उनका जन्म स्थान भी यही इलाका है। अब हम आ जाते हैं सियासत के मैदान की तरफ। तो सियासत के मैदान में यहाँ एक बहुत कदावर शख्सियत, बल्कि उन्हें सियासत का गुरु माना जाता है, और अगर गुरु कहा जाए तो वो बात गलत नहीं होगी। साबका वजीर चौधरी अनवर अजीज। साइंस के मैदान में अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम हुआ, और वो हैं डॉक्टर नेमत अली जावेद। इन तमाम बातों के साथ साथ सबसे एक ऐसी बात कि जो शकरगढ़ के लोगों को मुमताज़ करती है, जो शकरगढ़ के लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ है, वो इनका मुशक्क़ती होना, मेहनत करना और जफाकश में अपनी मिसाल आप हैं। प्यार, मोहब्बत, खुलूस, चाहत यहाँ रखने की बिना पर लोग आपस में प्यार मोहब्बत बांटते नजर आते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ शकरगढ़ की बड़ी मशहूर है, वो है शकरगढ़ की तेज़ रफ्तार बसें। शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका होगा कि जहाँ पे इतनी रफ ड्राइविंग करती बसें नजर आएंगी, जिसकी बिना पर आए रोज हादसा होते रहते हैं और कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा शकरगढ़ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। उम्मीद है आप हमारी वीडियो ज़रूर पसंद फरमाएंगे। आप और आपके दोस्त अहबाब या रिलेटिव में अगर किसी का ताल्लुक शकरगढ़ से है तो हमारी ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिएगा। उम्मीद है वो भी अप्रिशिएट करेंगे। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में अगले शहर के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।